Hello everyone, this is Rohit Menon, ex-visa officer, New Zealand Embassy, Delhi branch. Today, I'm going to only talk about our services and about us, A lot of people, a lot of my clients, after getting a visa for Canada or after getting a visa for US or UK, student visa or visitor visa, still after a long time, they come back to me and they call me and ask me, sir, आप इस country का भी visa करते हैं क्या? So this video is basically telling about our services as Visas Connect. So Visas Connect is a brand name that we use to promote our business, which is an entity of EduConnect International Private Limited. That is the company's name. We are a private limited company. I am one of the directors of the company, right? So in our company, the services, we are solely a visa-centric company. You name a visa, you name a country, you talk about a visa type, we do all types of visa application. It can be a student visa application. It can also be a visitor visa application. It can also be a family visit. It can be a spouse-based work permit visa application. It can also be a permanent residence application. It can be an intra-company transfer. We help in statement of purpose, formats, letter of intent formats, all sorts of formats you think about. We will provide you with that services directly to the clients and also to the consultants who work with us, who wants our expertise, our help on their client's visa application. We also help in intra-company transfer, like I said, if you're moving. We do not help in getting jobs. We are not into jobs at all, right? हम लोग job नहीं लगा के देते किसी भी country का. We don't get into that monkey business. But if you have a job offer on hand and if you come to us कि हमारी visa application कर दीजिए, तो हम आपकी visa application process कर देंगे उस country के लिए. Disclaimer, किसी किसी country में visa policies हैं जहाँ पे licensed advisors या lawyers की जरूरत होती है, जिसमें आप अलाउड नहीं होते एज अ कंसल्टेंट ऑफशोर, जैसे कि हम इंडिया में हैं, आप अलाउड नहीं होते उसमें रेकमेंड करने में, तो वो कंट्रीज हम लोग नहीं करते हैं. बट हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उस कंट्री की, बेसिकली उन कंट्रियों में इमिग्रेशन एडवाइस नहीं देते हैं, बट उस कंट्री में फॉर्म फिलिंग या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है और या फिर पब्लिकली अवेलेबल है, उस चीज में हम लोग इंफॉर्मेशन देने में हेल्प कर देते हैं. सो आई विल जस्ट क्विकली reiterate the services that we do. We help in all types of visa application. It can be a student, visitor, work visa, only if you have a job offer, PR, residence, partnership-based application, postgraduate work permit, after the course, visa extension of any sort, any type of applications. We are solely a visa-centric company. So if you need any sort of help, any sort of information on any country's visa, it could be a B1, B2, it could be a H1B visa for US, it could be a Canada family visit visa, student visa, any type of visa you want help on, we are there to help. You get in touch directly with me. I have a very, very sole USP of our business. मेरे clients directly मुझसे ही deal करते हैं because I happen to be an ex-immigration officer. I am well versed with telling them with the logical information and explanation on their application. I don't depend on my team to counsel you and give information कि एक बार बात करा ली, एक बार आपने अपनी प्रोसेसिंग फीस पे कर दी, उसके बाद टीम हैंडल कर रही है. टीम मेरी बैकएंड पे सारा काम करती है. हर एक एप्लीकेशन मुझसे चेक होके जाती है, उसके अलावा चेक नहीं होती है, उसके बिना फाइल लगती नहीं है. एक और यूएसपी जो हमारी कंपनी का है, जो शायद ही कोई प्रैक्टिस कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा, बट मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब भी हम लोग फाइल लगाते हैं, एक पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल लगाने से पहले हम एप्लीकेंट से शेयर करते हैं. उसके बाद यहीं तक नहीं, हम उस क्लाइंट को ऑनलाइन लेते हैं एप्लीकेशन सबमिशन में और उनके सामने एप्लीकेशन सबमिट करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और हमने ब्लाइंडली फाइल तैयार करी और सबमिट कर दी. इससे क्या होता है, जब एप्लीकेंट ऑनलाइन होता है एंड व्हेन वी गो थ्रू द एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, व्हाट हैपेंस इज दैट
एप्लीकेंट इज एबल टू पॉइंट आउट कि सर यहाँ पे ये नहीं लिखना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया बाई चांस गलती से, आप स्क्रॉल डाउन करिए, ये कर दीजिए, यहाँ पे जॉब टाइटल मेरी ये नहीं है, ये है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जो एरर का रेट है वो हो जाता है 0%, यानी कि एरर होता ही नहीं है। इट बिकम्स अ कंप्लीट मेटिकुलस job on the application with all the labels, all the information we try to put in the application to get a fair and positive outcome to your visa application. So I hope this visa interview, the visa application process and all this information can really benefit you. Every year, we do a lot of applications for student visa application, especially मैं कनाडा की बात करूं या यूके की बात करूं या यूएस की बात करूं, यूबीसी के स्टूडेंट्स विच इज यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या फिर बर्कले जो यूएस में है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी हो गया, ऑल दीज यूनिवर्सिटीज, क्वींस यूनिवर्सिटीज हो गया, किंग्स कॉलेज हो गया यूके का, ऑल दीज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, इनके बच्चों का हम लोग सितंबर इनटेक, जो कि सबसे बड़ा इनटेक है, वो एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं। एंड स्पेसिफिकली मैं डरा नहीं रहा हूं, बट लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स जो खुद करते हैं या इनएक्सपीरियंस कंसल्टेंसी की शिकार होते हैं और जिनका डिक्लाइन हो जाता है, तो ऑन एन एवरेज मतलब 60-70 एप्लीकेशन और लगभग 100 से ऊपर एप्लीकेशन भी कभी कभी हम लोग डिक्लाइन केसेस के ही फाइल करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिक्लाइन होके एप्लीकेंट आते हैं जब मेरे पास, तो हम रीलॉन्च करते हैं एंड वी हैव गॉट देम ऑल्सो अप्रूव्ड, है ना। अगला वीडियो मेरा जो आने वाला है वो इस बारे में भी होगा कि डिक्लाइन के बाद कितनी बार डिक्लाइन के बाद आपका अप्रूव हो सकता है। आई विल कम टू दैट वीडियो इन माय फ्यूचर वीडियो सीरीज ऑफ 100 वीडियोस। बट हर साल इतने एप्लीकेशन डिक्लाइन होते हैं बेसिक मिस्टेक्स की वजह से। कनाडा में खासकर इस बार ही एसडीएस स्ट्रीम हटा दिया है, सिर्फ नॉन एसडीएस स्ट्रीम ही है। तो आई वुड से कि आप नॉन एसडीएस स्ट्रीम में फुल डॉक्यूमेंटेशन करिए, डॉक्यूमेंटेशन पूरे लगाइए, गो फुल थ्रॉटल विद योर एप्लीकेशन, ताकि आपके एप्लीकेशन में कोई कमी ना हो। कोई भी असिस्टेंस चाहिए, यू कैन कॉल ऑन द नंबर डिस्प्लेड, दिस इज माई नंबर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, यू डायरेक्टली गेट इन टच विद मी, I pick up your call. If I don't pick up your call, you message me. I look at your message. 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। इफ आई एम ट्रैवलिंग या अगर मैं किसी मीटिंग में या किसी फाइलिंग में बिजी हूँ, जो कि अभी हम लोग हो चुके हैं बिजी सितंबर इनटेक के लिए। इसी के साथ साथ इन्हीं के पेरेंट्स की एप्लीकेशन भी हम करते हैं कि जो स्टूडेंट जाता है, राइट, उनके पेरेंट्स के पास भी या सिबलिंग्स के पास भी वीजा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस आपका एज ए स्टूडेंट हो जाता है कनाडा में या यूएस में या यूके में, पेरेंट्स लास्ट मिनट में 11th आवर में अप्लाई ना करें, वो उनके पास वीजा हैंडी होना चाहिए। तो ये रीजन देके हम लोग पेरेंट्स का भी वीजा लेते हैं, तो हमारा साथ ही साथ पेरेंट्स की एप्लीकेशन भी चल रही होती हैं। थिंग्स आर गोइंग टू गेट रियली बिजी। इट इज एक्चुअली गेटिंग अ लॉट बिजियर नाउ with the September intake coming just round the corner. So any help you need, you call us, you register with us and book your appointment for the application with us, because we will be busy with a lot of applications and I want to give an individual attention to all my applicants and parents who call us for Canada and all the countries for September intake. So if you plan, if you register with us on time, so accordingly we enter all your details, give you a date of submission, take you online and submit the application. I hope now you know our services in detail and now you know where to come for a very, very meticulous professional service. This is Rohit Menon. Thank you very much. Signing off. Have a nice day.